اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کرن اجالا سیریز، محمود فاروقی کے افسانے، مرتب مشہود فاروقی۔ آج کا افسانہ، جاگتے رہو۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ کالونی کے تمام رہنے والوں نے اسے دیکھا ہو یا نہیں، لیکن سب اس سے بخوبی واقف تھے۔ جیسے ہی لوگ راتوں میں اپنے بستروں پر سونے کے لیے لیٹتے، اس کی پاٹدار لہراتی ہوئی آواز گونجتی، جاگتے رہو، اور سب بڑے اطمینان سے پیر پھیلا کر سو جاتے، اور وہ تنہا رات کے بیشتر حصے میں کالونی کی ساری گلیوں کا چکر لگاتے ہوئے وقفے وقفے سے برابر آواز لگاتا رہتا، او جاگتے رہو۔ ارباب خان اپنے نام کی طرح بھاری بھرکم پٹھان تھا۔ بھرے ہوئے گلچھے، سرخ سرخ پھولا ہوا چہرہ، ماتھے پر ایک گہرے زخم کا نشان، جو اس کے خالص ولایتی پٹھان ہونے کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ جب سے کالونی بنی تھی، وہ کالونی کی چوکیداری کا فرض انجام دے رہا تھا۔ ہر گھر پیچھے ہر مہینہ اسے ایک چونی مل جاتی، اور مہینہ بھر 100-125 روپیے اس کی آواز کی کھن گھرج میں کھنکتے رہتے۔ کالونی میں بنگلے، کوارٹر اور جھگیاں سب پہلو با پہلو موجود تھے، اور ان اونچے نیچے مکانوں میں امیر، غریب اور اوسط درجے کے سب طرح کے لوگ بستے تھے۔ سب اپنے اپنے حال میں کسی حد تک مطمئن تھے۔ اس سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا تو مشکل تھا، لیکن ایک بات قطعی طور پر کہی جا سکتی تھی کہ یہ کالونی کی یہ ساری آبادی اس بات پر پوری طرح مطمئن تھی کہ جب تک ارباب خان کا نعرہ جاگتے رہو کالونی میں گونجتا ہے، اس وقت تک کسی چور کا کھٹکا ان کی نیندوں کو حرام نہیں کر سکتا۔ کالونی بنے ہوئے 5-6 سال ہو چکے تھے۔ پہلے سال چوری کی 2-4 وارداتیں ہوئی تھیں، لیکن جب سے ارباب خان نے چوروں کے مشہور سرغنے بابو سے دست بدست مقابلہ کر کے اسے جیل کی ہوا کھلائی تھی، اس وقت سے اس کی ایسی تھاک بیٹھی تھی کہ چور 3 نمبر کالونی سے 12 پتھر دور ہی رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی آبادیوں میں آئے دن گھروں کا صفایا ہوتا رہا، لیکن 3 نمبر میں ہمیشہ سب کچھ ٹھیک ہی رہا، کبھی کوئی گڑبڑ ہونے نہیں پائی۔ سردی کا موسم تھا۔ شام ہی سے کالونی میں سناٹا سا ہو گیا تھا۔ کچھ رات گزرنے پر ارباب خان کالا کمبل اوڑھے، اپنی لوہے کی شام والی لاٹھی لیے حسن بھائی کے گیراج سے باہر نکلا۔ نسوار کی ڈبیا انگلی سے ٹھوکا دے کر کھولی، نسوار کی چٹکی دانتوں کی جڑ میں دبائی، اور بلندی پر سے نظر آنے والی 12 گلیوں والی کالونی پر ایک نظر ڈالی۔ اس وقت آسمان پر بڑا دلچسپ کھیل ہو رہا تھا۔
चांद बड़ी तेजी से भागा जा रहा था और सफेद काले बादलों की एक फौज उसका पीछा कर रही थी। इस झिलमिल में वो खामोश सोई सोई 3 नंबर कॉलोनी उसे बड़ी भली लगी। उसका चौड़ा चकला सीना शफकत और मोहब्बत के जोश से भर गया, बिल्कुल इस तरह जैसे किसी बाप का दिल अपनी प्यारी प्यारी मासूम बच्ची को सोता देखकर मोहब्बत से छलकने लगे। कॉलोनी की आखिरी गली तक नजर दौड़ाते हुए वो अपनी जिम्मेदाराना हैसियत को महसूस किए बगैर नहीं रहा। क्यों ना हो, रात के सन्नाटे में ऊपर खुदा निगहबान था तो नीचे उसका बंदा अरबाब खान। हाँ, अरबाब खान जो घर घर से मिलने वाली चवन्नी के लिए नहीं, बल्कि अपने सच्चे ईमान और फर्ज शनासी के नशे में 5-6 साल से बराबर जागते रहो की आवाज बुलंद करता रहा था, जो कॉलोनी वालों के लिए एक मीठी लोरी थी तो चोर चुकारों के लिए खतरे का अलार्म। नस्वार के जमा हो जाने वाले लुआब को थूक कर उसने लाठी संभाली और लान को पार करके उस बजरी पर चलने लगा जो हसन भाई के कमरे के साथ साथ गेट तक चली गई थी। हसन भाई का घराना शहर में रहता था और वो महीने में 2-4 मर्तबा तफरीहन यहाँ आ जाते थे। आज भी वो लोग यहाँ आए हुए थे और दिन भर हसन भाई के बच्चों ने कच्चे पक्के पपीते और केले तोड़ तोड़ कर अरबाब खान के लगाए हुए बाग को उजाड़ दिया था। वाह रे हसन भाई! अरबाब खान चलते चलते खिड़की के पास रुक गया। खिड़की के पट खुले हुए थे जिसे जाने वाले बंद करना भूल गए थे। अरबाब खान ने निचले कटघर पर खड़े होकर खिड़की का पट खींचने के लिए सलाखों में से हाथ डाला। पट को अपनी तरफ खींच लेना कुछ ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं था, लेकिन अरबाब खान रुक गया। वो रुक क्यों गया? मुकाबिल के रोशनदान में से चांदनी का एक चौकोर टुकड़ा खिड़की से करीब लगे हुए मेज पर पड़ रहा था और कांच के पेपर वेट पर चांदनी चकाचौंध चमक रही थी। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात ने अरबाब खां को मबहूत नहीं बना रखा था। उसकी नजरें पेपर वेट के नीचे दबे हुए एक सुर्ख करारे कागज पर एक टुक जमी हुई थी। 100 रुपए का नोट। अरबाब खान को हर महीने 100-125 जरूर मिल जाते थे, लेकिन चवन्नी अठन्नी करके महीने भर की ये चवन्नियां और अठन्नियां कभी खड़खड़ाते कागज की सूरत में उसके हाथ में नहीं आई थीं। और आज जबकि ऊपर खुदा की जात, नीचे सिर्फ अरबाब खान जाग रहा था, महीना होने से पहले ही महीने भर की ये रेजगारी एक सुर्ख करारे नोट में छुपी हुई उसके सामने रखी हुई थी। यही वजह थी कि पट बंद करने का आसान सा काम अरबाब खान के लिए बड़ा भारी हो गया था। उसके मुकाबले में जरा सा तिरछा होकर हाथ बढ़ाकर उस नोट को उठा लेना कितना आसान और सुहेल मालूम हो रहा था। क्या अरबाब खान इतने आसान और सहल से काम को कर नहीं सकता था? क्यों नहीं?
चुनाचे वो जरा सा तिरछा हुआ। उसने दूसरे हाथ से सलाख को मजबूत पकड़ा और पट को छोड़कर मेज पर दाहिना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडे पेपर वेट को छूती हुई उस नोट के किनारों तक पहुंची, लेकिन जागते रहो। अरबाब खान ने एक झटके से अपना हाथ खींच लिया, जैसे उसके हाथों में बिजली का एक जबरदस्त झटका सा लगा हो। ये कौन था? ये किसने आवाज लगाई? उसने पलटकर दूर दूर तक नजरें दौड़ाईं। हद्दे नजर तक सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान पर बादल के टुकड़े उसी तरह भाग रहे थे। उनके किनारे नजरों से ओझल चांद की रोशनी से चमक रहे थे। सामने लंबी सड़क दूर मस्जिद की ऊंची सीढ़ियों तक बिल्कुल ही खाली पड़ी थी। फिर ये किसकी आवाज थी? जागते रहो। आवाज सड़क की तरफ से आई थी या बंद कमरे में से, नामालूम कहां से, मगर आई जरूर थी। कहीं ये आवाज मेरी ही तो नहीं थी? ये मेरी ही आवाज थी, बिल्कुल उस तरह भारी लयदार डपटती हुई। जागते रहो। शायद मैंने ही आवाज लगाई हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल सांस रोके हुए खामोश था। अरबाब खान खिड़की पर लटके हुए बड़ी उलझन और कशमकश में मुब्तला हो गया। तरह तरह के ख्यालात उसके जहन में चक्कर खाने लगे और वो एक खुद गुमशुदगी की कैफियत में खिड़की से नीचे उतर आया। नस्वार की डिबिया को उंगली से ठोका दिया, चुटकी भरी, लेकिन नस्वार मुंह में नहीं रखी। कुछ सोचे बगैर एक टुक मैदान की तरफ देखता रहा, फिर दीवार से टिकी हुई लाठी की तरफ हाथ बढ़ाया। लाठी नहीं उठाई, बल्कि जरा सा ठिठक कर निस्वार होंठों की जड़ में दबा ली और लाठी उठाना भूलकर यकलक इस तरह आगे बढ़ा जैसे कोक खुलने में खिलौने वाली मोटर दौड़ पड़ती है। लांबे लांबे डग भरते हुए गेट तक जा पहुंचा। बंद गेट के पास पहुंचकर यकलक रुक गया, जैसे कोई जबरदस्त ब्रेक लग गया हो। गेट पर अपना भारी भरकम हाथ रखे हुए सड़क पर देखता रहा। एक फटी हुई पतंग फुटपाथ के किनारे हवा से किरकिरा रही थी, खर खर खर। पतंग फुटपाथ पर नहीं, बल्कि उसके कान में घुसकर खरखराने लगी और उसकी उंगलियों में 100 रुपए के नोट का लिम्स सरसरा उठा। अरबाब खान ने गेट खोला, बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उसने बढ़ते हुए कदम को रोक लिया और गेट को तेजी से बंद कर दिया और उसी तरह लांबे लांबे डग भरते हुए खिड़की तक जा पहुंचा। एक हाथ बुलंद करके खिड़की की सलाख थामी, एक पैर उठाकर कटघर पर रखा, फिर अचानक पलटकर सड़क की तरफ देखने लगा, शायद ये सोचकर कि कहीं फिर कोई जागते रहो का नारा बुलंद न कर दे। लेकिन वहां उस सर्द रात के सन्नाटे में दूर दूर तक कोई नहीं था। आसमान पर बादल दौड़ रहे थे और नजरों से ओझल चांद की किरणें उनके किनारों को रोशन कर रही थीं। दूर मस्जिद की ऊंची सीढ़ियों तक सड़क खामोश और सुनसान पड़ी थी।
अरबाब खान की बेचैन नजरें एक एक करके मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ीं, फिर बुलंदो बाला दरवाजे पर से होती हुई आजान देने वाले बुर्जी के किलिस तक पहुंची। वहां से छलांग लगाकर मस्जिद के ऊंचे मीनारों पर चढ़ गईं। चांदनी में जगमग करते हुए किलिस पर ठिठक कर रुक गईं। फिर वहां से जिस तरह ऊपर चढ़ी थीं, उसी तरह उतरकर सीढ़ियों पर आ गईं। एक एक सीढ़ी उतरकर सड़क पर उल्टे पांव लौटने लगीं, फिर गेट के सामने से गुजर गईं और अरबाब खान अपनी ही निगाहों का पीछा करते हुए घूम गया और उसकी नजरें सामने तकती हुई 12 गलियों वाली 3 नंबर कॉलोनी पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ गईं। खामोश खामोश सी वो सोई हुई 3 नंबर कॉलोनी, उसका सीना सांस से भर गया, जैसे किसी बाप का दिल अपनी प्यारी प्यारी सोई हुई बच्ची को देखकर मोहब्बत और प्यार से भर जाता है। कॉलोनी की आखिरी गली तक नजरें दौड़ाते हुए वो अपनी जिम्मेदाराना हैसियत को महसूस किए बगैर नहीं रह सका। क्यों ना हो, रात के सन्नाटे में ऊपर खुदा निगहबान था तो नीचे उसका बंदा अरबाब खान। हाँ, अरबाब खान, जो घर घर मिलने वाली चवन्नी के लिए नहीं बल्कि अपने सच्चे ईमान और फर्ज शनासी के नशे में 5-6 साल से बराबर जागते रहो की आवाज बुलंद करता रहा था। अरबाब खान के मुंह में निस्वार का बहुत सा लुआब जमा हो गया था। उसने एक लांबी पिचकारी मारी और उसे यूं लगा जैसे उसके सीने पर जमा हुआ बहुत सा मैल कुचैल निकल गया हो और वो बहुत ही हल्का फुल्का हो गया हो। चुनाचे अरबाब खान बड़ी तमानियत के साथ पलटा। वाह रे हसन भाई, खुद तुम हमेशा खिड़की खुला छोड़ जाता है। कुछ देर बाद अरबाब खान नपे तुले कदमों से चलते हुए गेट खोलकर सड़क पर आया। अपनी लाठी से सुर्ख पतंग की खांच को उठाकर नाली में फेंक दिया, फिर सड़क पर लाठी बजाते हुए आगे बढ़ा। अरबाब खान आगे बढ़ता चला गया और 1, 2, 3 नंबर कॉलोनी की पूरी 12 गलियां उसकी भारी लयदार टपकती हुई आवाज से गूंज उठी। जागते रहो, जागते रहो। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला